Hello everyone, welcome to Precision Prep. In the last class, we have done the share capital, the introduction to share capital, the types of shares and the types of subscription and the types of share capital we have done, in which we have covered the authorized capital, maybe the nominal capital you can say, the issued capital, the subscribed capital, called up capital and paid up capital. I hope this must be clear to everyone. In today's video, we are going to start the further section. Let's get started. Let's start with the issue of shares. अब शेयर किस प्राइस पे इशू होगा? जब कंपनी फॉर्म हुई थी तब कंपनी के पास एमओए में था ऑथोराइज्ड कैपिटल, लेट्स से एट द रेट ऑफ 10 ईच, 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच. तो ये जो आपका 10 ईच एमओए बनाते टाइम राइट डाउन हुआ वहां पे, तो वो हो गया आपका फेस वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल 10 ईच. इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स कभी भी अगर ऐसा लिखा हो कि उनकी फेस वैल्यू आपको नहीं बताई हुई है तो वो कितना होता है 10 ईच. अब कंपनी शुरू हुई थी 10 ईयर्स अगो या 5 ईयर्स अगो, तब कंपनी ने शेयर कैपिटल इशू नहीं किया. बट आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर सम ईयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन स्टार्टेड, कंपनी वांट्स टू रेज द कैपिटल थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स. तो वैसा तो नहीं कि कंपनी 10 रुपीज पे शेयर्स इशू करेगी. कंपनी ये भी कह सकती है कि हमने ग्रो किया है, एक्सपेंशन किया है, डाइवर्सिफिकेशन किया है, सो हमारे कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई है. सो इन दैट केस कंपनी वांट्स टू रेज द मनी एट हायर प्राइसेस. कंपनी से कि हमारा फेस वैल्यू तो 10 रुपीज है, बट वी वांट्स टू रेज द share at a price of let's say 150 rupees each. So ये जो डिफरेंस है हमारा इशू प्राइस 150 each और फेस वैल्यू 10 का, this is the difference called premium. So this is the one part where the company can raise the capital or the shares at a price higher than the face value. That is known as the issue of shares at premium. Here you can see at premium, and it deals with the section 52 of the Companies Act 2013. सेक्शन 52 क्या कहता है कि कंपनी जो है शेयर्स को एक्स्ट्रा अमाउंट पे, मोर देन, ओवर एंड अबव फेस वैल्यू ऑफ द शेयर से रेज कर सकती है पैसा, इशू कर सकती है शेयर्स. दैट इज नोन एज इशू ऑफ शेयर्स एट premium price. And how do we write it as? Securities premium. When the shares are issued at a price higher than their nominal or the face value. In this question, we have a nominal value of 10. The excess amount is known as securities premium account. In this case, our issue price is always greater than the face value. What is the other option? The company can simply issue the shares at the face value. जो भी कंपनी का फेस वैल्यू था, कंपनी कैन रेज द शेयर एट द सेम प्राइस. लेट्स से द फेस वैल्यू 10 है तो इशू प्राइस भी कितना हो गया कंपनी का? 10 रुपीज हो गया. दिस इज द वन वे हाउ द कंपनी कैन रेज द शेयर्स. नाउ we are covering this section 52 in detail. Let's go to the next part. Section 52, utilization of securities premium as per section 52. Okay. Now, what does this section says? Section 52 says where you can use the securities premium raised by the company. Let's say for an example, company has issued 1 lakh shares at the rate of 10 each at 100 per share. 10 रुपीज फेस वैल्यू है शेयर का, बट कंपनी ने इशू कितने पे किया है आपका? 100 रुपीज पे. तो जो डिफरेंस है 100 माइनस 10, दिस 90 रुपीज इज बिकम द सिक्योरिटीज प्रीमियम. नंबर ऑफ शेयर्स वाज 1 lakh. So total amount equals to 90 lakhs. तो जो 90 lakhs है ये क्या है? आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम है जो कंपनी ने रिसीव किया at the time of issue of share. Now the question is, for what purposes the securities premium can be issued? So the number one purpose is the company can raise the shares at
for issuing the bonus paid shares, for issuing the fully paid bonus shares. अभी bonus shares क्या होते हैं? जब भी कंपनी में प्रॉफिट्स होते हैं, सो इन दैट केस कंपनी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट दोस प्रॉफिट्स विद द शेयर होल्डर्स to existing shareholders. In that case, company can issue the fully paid bonus shares. फॉर बोनस शेयर्स के लिए कंपनी कभी भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से अमाउंट चार्ज नहीं करती, कैश रिसीव नहीं करती है. फॉर एग्जाम्पल, लाइक फॉर द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC, मेरे पास जो है ऑलरेडी 400 शेयर्स हैं. कंपनी ने डिक्लेयर किया कि कंपनी इज डिक्लेयरिंग द बोनस एट द रेशियो ऑफ 2:1. दैट मीन्स जिन लोगों के पास भी 2 शेयर्स हैं, कंपनी उन्हें 1 शेयर अलॉट करेगी. सो इन दिस केस आई हैव 400 शेयर्स, 2:1, तो 400 इंटू 1/2, 200 शेयर्स कंपनी क्या देगी? मुझे बोनस देगी. दैट मीन्स ये फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी जो है शेयर्स मुझे दे देगी, जिसके लिए कंपनी शेयर होल्डर से कोई भी पैसा चार्ज नहीं करती. तो बोनस शेयर्स एक ऐसे शेयर्स होते हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं उनके शेयर कैपिटल अकाउंट में विदाउट चार्जिंग एनी मनी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स. सो अनदर पॉइंट ऑफ व्यू इज कि अगर हमारे पास कैश फ्लो में इसका क्वेश्चन आता है, इशू फुली पेड बोनस शेयर्स, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम बोनस शेयर्स को काउंट नहीं करते. क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो काउंट नहीं होता. सेकेंड, for which the company can use the securities premium is for writing of the preliminary expenses. प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी फॉर्म करते टाइम लोग खर्च करते हैं. मे बी फ्रॉम प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनी को रजिस्टर करने के लिए जो खर्चा हुआ, रजिस्ट्रार के पास पेपर सबमिट करवाने में जो खर्चा हुआ, और जो भी कंपनी के फॉर्मेशन होने से पहले का खर्चा है, दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी. और इन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकते हैं. थर्ड, राइट ऑफ एक्सपेंसेस, कमीशन और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स. सो जब भी आपके शेयर्स को री इशू करने का डिस्काउंट था, या डिबेंचर्स पे इशू करने पे अगर कोई डिस्काउंट लगा है, या कमीशन किसी को पे किया है, कमीशन किसको पेंगे? मे बी टू द अंडर राइटर्स. अंडर राइटर कौन होता है? जब कंपनी शेयर्स इशू करती है. सो इन दैट केस कंपनी को कई बार लगता है कि जैसे लोग हमारे शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, सो कंपनी कुछ इंस्टीट्यूशंस को अपॉइंट करती है कि आप हमारे शेयर्स इन लोगों को सब्सक्राइब करा सकते हो, आप अप्रोच कर सकते हो. तो उन्हें कहते हैं अंडर राइटर्स. तो अब अंडर राइटर को कमीशन देनी है, तो उनको कमीशन किस में से मिलेगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम में से. राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस करने के लिए यूज कर सकते हैं. दीज एक्सपेंसेस आर काइंड ऑफ विच आर रिलेटेड विद द शेयर्स. Fourth, providing premium payable on the redemption of preference shares or debentures. In case अगर प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स हमारे प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं, दैट मीन सपोज करो 1 लाख के डिबेंचर्स रिडीम होने हैं या 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होने हैं. सो इन दैट केस, लेकिन वो कह रहा है कि प्रीमियम पे रिडीम होने हैं, सपोज 5% प्रीमियम पे रिडीम होने हैं. सो इन दैट केस जो एक्स्ट्रा 5% है, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख के अगर रिडीम हो रहे हैं तो 5% इज 5,000. सो एक्स्ट्रा जो प्रीमियम पेएबल है उनपे, तो जो 5,000 है वो किस पे आपका हो जाएगा? दैट इज टू आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम से आप वो प्रीमियम जो है क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं. एंड फिफ्थ वन इज द बायबैक ऑफ द शेयर्स. बायबैक, कंपनी वांट्स टू बाय बैक इट्स शेयर फ्रॉम द general public. So in that case, company can use the securities premium to buy back of the shares as per the. So these are the only 5 purposes. First one, issue of fully paid bonus shares, writing of preliminary expenses, writing of expenses, commission or discount on issue of shares, providing premium payable on redemption, and buyback of shares. Beyond these 5 purposes, company cannot use the securities premium for any other purpose, because securities premium क्या है? एक कैपिटल रिजर्व है जिसे आप एक रेस्ट्रिक्टेड पर्पसेस के लिए ही यूज कर सकते हो. दैट हैज बीन रिटन एंड दीज आर द ओनली 5. अदर देन दैट कंपनी अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम को किसी भी और पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकती. रिटर्न ऑल्सो, कंपनी कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट the share securities premium as dividend. Sometimes MCQs में आ जाता है कि out of the following purposes company cannot use the securities premium for.
सो द आंसर कुड बी डिविडेंड इफ इट इज देयर। अदरवाइज ऊपर लिखे हुए 5 पर्पसेस के अलावा कोई भी अगर पर्पस लिखा है तो कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूटिलाइज नहीं कर सकती है। आई होप दिस हैज मेड क्लियर टू एवरीवन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वेयर वी कैन शो दिस इन द बैलेंस शीट। सिक्योरिटीज प्रीमियम को अब बैलेंस शीट में कहाँ शो कर सकते हो? सो द एग्जैक्ट पोजीशन टू शो इन द बैलेंस शीट इज अंडर इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इक्विटीज और लायबिलिटीज में हम इसे शो करेंगे, एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस विल बी आर, reserves and surplus is the subhead. So we can say under equities and liabilities, the main head is the shareholders fund एंड द सब हेड इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो जितना अमाउंट आपका कैलकुलेट करके आया है सिक्योरिटीज प्रीमियम में, जो भी आपने रिसीव किया, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में आपका शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस। नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ द सिक्योरिटीज प्रीमियम? नेचर से इसके सेक्शन 52 कहता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है आपका कैपिटल रिजर्व है, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही यूज कर सकते हैं, फ्री नहीं है किसी भी रिजर्व के यूज करने के लिए। ऐसा नहीं कहीं भी किसी भी चीज के लिए डिविडेंड के लिए यूज कर लिया, मशीनरी रिप्लेसमेंट के लिए यूज कर लिया, ऐसा नहीं है। जो 5 हमारे स्टेटेड प्रोविजंस हैं जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में किया है सेक्शन 52 के अकॉर्डिंगली, सिर्फ उन्हीं पर्पसेस के लिए यूज होगा। इट कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पस, इट कैन नॉट बी यूज फ्रीली, एंड इट कैन नॉट बी यूज एज अ फॉर द पर्पस ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज नहीं कर सकते। एंड व्हाट आर द एमसीक्यूज एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू? सेक्शन 52 किससे रिलेटेड है? आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम से। इट्स अ कैपिटल प्रॉफिट। कई बार असर्शन रीजनिंग में आ जाता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अ फ्री रिजर्व और अ कैपिटल प्रॉफिट, या फिर क्या है, तो आपको फॉल्स और करेक्ट के अकॉर्डिंगली चूज करना होगा। इट इज यूज एज अ रिस्ट्रिक्टेड, यस रिस्ट्रिक्टेड है, और डिविडेंड हम इससे पे आउट नहीं कर सकते। आई होप द सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट जर्नल एंट्रीज। नाउ कि जर्नल एंट्रीज हम कैसे करेंगे? जब भी शेयर्स इशू होते हैं तो शेयर्स इशू करते टाइम सबसे पहले कंपनी क्या करती है? आईपीओ निकालती है, एप्लीकेशंस कहती है लोगों से, लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए, पब्लिक सब्सक्राइब करेगी एप्लीकेशंस को। सो नंबर 1 इज द फर्स्ट एंट्री विल बी द बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। व्हाई आई हैव रिटन इज लाइक आपका इक्विटी शेयर इशू किया है तो आप इक्विटी लिखोगे, प्रेफरेंस किया है तो प्रेफरेंस लिखोगे, बट समटाइम्स एक ही क्वेश्चन में दोनों शेयर्स होते हैं, तो आप ऐसा लिख सकते हो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव। अभी अमाउंट कौन सा जाएगा? हाउ डू वी कैलकुलेट द अमाउंट है? द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव, जितने भी आपने एप्लीकेशंस उस समय रिसीव किया है, मल्टीप्लाई बाय द अमाउंट ऑफ application, right? So these are the amount which will go to the number of application received and the amount of application that will be go. So for example, कंपनी ने इश्यू किया 1 लाख इक्विटी शेयर्स और एप्लीकेशंस आ रहे हैं 1,10,000, तो यहाँ पे जर्नल एंट्री किसके अकॉर्डिंगली होगी? 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय द एप्लीकेशन अमाउंट। अभी एप्लीकेशन फेस वैल्यू है तो फेस वैल्यू लिख दोगे, अगर प्रीमियम इंक्लूडेड है तो आप प्रीमियम ही इंक्लूड करके लिखोगे। ओके, नाउ द सेकेंड जर्नल एंट्री, आपका इक्विटी प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये अमाउंट आप ऊपर से ही कैरी फॉरवर्ड करोगे डायरेक्टली, जो हमें दिया हुआ था फर्स्ट एंट्री में नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव, तो जो भी अमाउंट आपका फर्स्ट एंट्री में आया है आप यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, कॉपी करोगे। टू इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी और प्रेफरेंस जो भी है कैपिटल अकाउंट। हाउ डू वी कैलकुलेट द अमाउंट है? नंबर ऑफ शेयर्स इशू, जितना कंपनी ने इशू किया, लाइक वी टेकन एन एग्जांपल कि 1 लाख शेयर्स इशू किए, तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इनटू द फेस वैल्यू ऑफ द एप्लीकेशन। जो भी एप्लीकेशन का आपका फेस वैल्यू था वो आप यहाँ पे लिख दोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 7 रुपीज आपका एप्लीकेशन है तो आप 7 लिखोगे। इफ इन केस अगर 7 में
प्रीमियम भी इंक्लूडेड है तो प्रीमियम एक्सक्लूड करके 6 और 1 रुपए का प्रीमियम, डिपेंड्स अपॉन द केस कि क्या है आपके पास। प्रीमियम नहीं है तो यहाँ पे आप प्रीमियम मत लिखना। बैंक अकाउंट अगर शेयर्स हम रिजेक्ट नहीं करे तो ये नहीं करेंगे। आगे आने वाली एंट्रीज में हम क्लियर करेंगे कि ये दो अमाउंट्स क्यों यूज होते हैं। थर्ड जर्नल एंट्री, preference share allotment, equity or preference share allotment account debit to preference share capital account to securities premium account। ये कब यूज होता है? जब हमें अलॉटमेंट ड्यू करना है तो अलॉटमेंट ड्यू करेंगे और वहां पे प्रीमियम है तो वहां पे प्रीमियम भी लिखेंगे। अब क्लियर है कैपिटल हम हर स्टेज पे क्या क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज कैपिटल क्रिएट हो रहा है। वी हैव डन द रूल क्रेडिट द कैपिटल। कैपिटल कभी भी क्रेडिट होगा तो वो क्या होगा आपका? इंक्रीज हो रहा है तो हम टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंक्रीज कर रहे हैं। और अगर प्रीमियम भी आ रहा है, प्रीमियम इज ऑलवेज क्रेडिटेड, तो प्रीमियम को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। नेक्स्ट स्टेज में रिसीव करेंगे जितने शेयर्स आपने रिसीव किया है अलॉटमेंट। हाउ डू वी कैलकुलेट दिस अमाउंट? द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, अब जितनी भी एंट्रीज हैं वो नंबर ऑफ शेयर्स इशू से ही होंगी, इनटू द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल में क्या जाएगा? नंबर ऑफ shares issued multiply by the face value of the allotment, again number of shares issued into the premium amount. So this is the amount which will go to equity share capital to securities premium account. बैंक अकाउंट डेबिट, नेक्स्ट एंट्री जहां पे आप क्या कर रहे हैं? आपका अमाउंट रिसीव कर रहे हैं तो जितने भी शेयर्स ने पैसा दिया बैंक अकाउंट में, ये वाला अमाउंट कॉपी हो जाएगा लाइक इन द जर्नल एंट्री। ये आप यहाँ पे कॉपी करोगे डायरेक्टली। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट में जितने लोगों ने पैसा दिया, सपोज 1000 शेयर होल्डर्स ने नहीं दिया तो हो जाएगा। जो लोग पैसा देने से मना कर देते, नंबर ऑफ शेयर्स who refuse to make the payment is comes under calls in arrears account, that is who refuses to make payment, वो आपका जाएगा मल्टीप्लाई बाय द स्टेज, जो अलॉटमेंट आपका अमाउंट है वो यहां जाएगा। राइट, एंड द बैलेंसिंग फिगर विल गो टू बैंक अकाउंट। आप बैलेंसिंग फिगर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और दोज हु मेक द पेमेंट, जिन्होंने मना नहीं किया एंड दे आर नॉट डिफॉल्टर, जिन्होंने पे किया, मल्टीप्लाई बाय द अलॉटमेंट अमाउंट। आई होप दिस इज क्लियर। Next, move to the next entry. The next stage is similar like allotment, just replaces by the name first and final call. इक्विटी प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि पैसा ड्यू करना है। सो नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड मल्टीप्लाई बाय जो भी आपका फर्स्ट कॉल का अमाउंट है। कैपिटल में क्या जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड इनटू फेस वैल्यू, बिकॉज ड्यू कर रहे हैं, एंड इनटू प्रीमियम अमाउंट, जो आपका प्रीमियम का अमाउंट है। आई होप दिस इज क्लियर। द लास्ट एंट्री फॉर द स्टेज अलॉटमेंट रिसीव करेंगे। अलॉटमेंट रिसीव करने का एंट्री क्या होगा? जैसे अलॉटमेंट रिसीव करने का था वैसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव करने का एंट्री होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और डेबिट हो जाएगा कॉल्स इन एरियर्स अगर किसी ने पैसा पे नहीं किया है। लेट्स कम टू द एग्जांपल। एवरीवन शुड रीड द एग्जांपल, then we'll start doing the journal entries. A company issued 20,000 equity shares at the rate of 20 each at 10% premium payable as 7 on application. So while doing that, in the rough work, we will write down application 7, allotment 6, and balance on first and final call, and 10% premium. अब 20 each share है
10% प्रीमियम, 20 × 10% कितना हो गया, ₹2 का प्रीमियम है। लेकिन क्वेश्चन में हमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि वो ₹2 का प्रीमियम कहाँ पे कर रहा है, एप्लीकेशन के साथ पे कर रहा है, अलॉटमेंट के साथ पे कर रहा है, या फर्स्ट एंड फाइनल के साथ पे कर रहा है। अगर ऐसा होता तो हमारे लिए क्लियर था। अगर इन ऐसा कोई केस हो जहाँ पे कुछ नहीं बताया, सो इन दैट पर्टिकुलर केस वी अज्यूम कि आपका पैसा कहाँ पे पेबल है, आपके अलॉटमेंट पे पेबल है। ₹6 का अलॉटमेंट है, तो ये कैसे आपका फॉर्म हुआ, 4 + 2, ₹2 क्या है आपका प्रीमियम। तो फर्स्ट कॉल कितना आ गया, इशू प्राइस कितना होना चाहिए, 20 + ₹2 प्रीमियम 22। सो 22 माइनस एप्लीकेशन माइनस अलॉटमेंट, सो 22 - 7 - 6, which is coming out to be 9. This is how okay. This will be amounted to 22, which is 20 plus premium, which is ₹2. अब ये ₹2 का प्रीमियम कौन से स्टेज पे है, अलॉटमेंट पे, तो अलॉटमेंट पे ही इसे लिखेंगे। ओके, विल स्टार्ट डूइंग द जर्नल एंट्री। अ कंपनी इशूड हाउ मेनी शेयर्स, 20,000 शेयर्स। अलॉट एप्लीकेशन कितने का है, ₹7 का एप्लीकेशन है। और वो कह रहा है ऑल द शेयर होल्डर्स पेड द अमाउंट टू द company except one shareholder holding 1,000 shares who did not pay the first and the final call. So that means उसने क्या नहीं पे किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे किया। तो फर्स्ट एंड फाइनल नहीं पे किया, तो जब फर्स्ट एंड फाइनल का एंट्री करेंगे तब देखेंगे। उससे पहले आपके जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्रीज है ये हम कर लेते हैं। एप्लीकेशन 7 और अलॉटमेंट 6 + 4 + 2, और उसने ये भी नहीं बताया कितने एप्लीकेशन हैं। तो जब ऐसा केस हो कि हमें नहीं पता कितने एप्लीकेशन आए हैं, सो वी विल डू द जर्नल एंट्री विद द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। हम फुली सब्सक्रिप्शन का केस लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। Okay, we start doing the journal entries. 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू है, सो अकॉर्डिंगली हम अपना क्वेश्चन करेंगे। एप्लीकेशन है ₹7, यू हैव ऑलरेडी रिटर्न एप्लीकेशन 7। ओके, फर्स्ट एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर प्रेफरेंस एंड एप्लीकेशन अकाउंट, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव। इस क्वेश्चन में तो 20,000 ही इशूड है, 20,000 ही रिसीव है। तो 20,000 into 7, which is the amount of application, 1,40,000 being बैंक अकाउंट डेबिट टू, अभी हम सिर्फ क्या लिखेंगे आपका, इक्विटी शेयर, बिकॉज प्रेफरेंस नहीं बताया है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री में यही अमाउंट आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर इशूड कितने थे आपके, 20,000 multiply by the amount of application, which is 1,40,000 only, same. So debit credit equal हो गया। क्वेश्चन में हमारे पास ना ही तो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, ना ही तो बैंक अकाउंट है। जब जर्नल एंट्री करेंगे आपको ये दोनों अमाउंट नंबर्स लिखने की नीड नहीं है। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, नंबर ऑफ शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, प्रेफरेंस नहीं आएगा यहाँ पे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, अभी क्या था, ₹6 का अलॉटमेंट है, लेकिन ₹4 इशू प्राइस है और ₹2 क्या है आपका प्रीमियम है। तो 6, विच विल बी 1,20,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया आपका, इक्विटी शेयर, so not preference, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 4, which is ₹80,000, and securities premium 20,000 shares into ₹2, तो कितना हो गया आपका 40,000. So this is the journal entry for being the allotment due. Debit and credit is equal. Now प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट कितना है, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ऊपर से कॉपी करेंगे अमाउंट 1,20,000। और उसने ये भी नहीं बोला कि किसी ने ऐसा शेयर होल्डर है जिसने ना पे किया, और सबने आपका अलॉटमेंट पे किया है। सो यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर केस आपका कॉल्स इन एरियस लिखने की नीड नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हो। जो जर्नल एंट्री विल बी ओनली बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,20,000, 1,20,000 बीइंग द अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब फर्स्ट कॉल पे ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल हमने कितना कैलकुलेट किया, ₹9। सो 20,000 शेयर्स इशू थे, मल्टीप्लाई बाय 9 अमाउंटेड टू ₹1,80,000। और कैपिटल में भी आपका सेम जाएगा, बिकॉज सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस हम सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं लिखेंगे, राइट। ओके,
So next, move on to the next journal entry. बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें 1000 शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिन्होंने पैसा देने से क्या कर दिया था, आपका बिल्कुल मना कर दिया था कि हम पैसा नहीं देंगे। तभी लोग पैसा नहीं देंगे तो एंट्री क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर्स पता चल गए। 1000 लोग ऐसे हैं जो पैसा देने से मना कर रहे हैं। और क्या देने से मना कर रहे हैं, आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल देने से मना कर रहे हैं। तो इंटू 9, कॉल्स इन एरियर्स हो गए 9000। वी चेक कि हमारे पास कितना अमाउंट आना चाहिए था, 1,80,000 फ्रॉम द लास्ट एंट्री। तो 9000 लोगों ने पैसा नहीं दिया, 9000 रुपीज नहीं आए। सो कितना अमाउंट आया, 1,71,000। आई होप दिस जर्नल एंट्री इज क्लियर टू एवरीवन।